देख लेते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन। तो इन ऑर्डर टू क्लासिफाई समथिंग एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जैसे वो फैक्ट जो होगा फैक्ट इन इशू नहीं होगा, दैट विल नॉट बी द फैक्ट इन इशू, but it is connected with fact in issue, but it is so connected with fact in issue so as to form part of same transaction. Whether that fact occurred at the same time at place or at different time at place, whether that fact occurred at same time and same place or at different time and different place. You write it, then I'll be explaining कि ये है क्या। देख लेते हैं कि how we'll be calling something as the part of same transaction। हमने doctrine of rent जिससे का मतलब समझा था in the last class। Anything which is said, anything which is written or anything which is done in the part of same transaction। Transaction means continuity of event which are so connected together, है ना। and ये जरूरी नहीं है कि वो एक टाइम और एक प्लेस पे हो, it could be at different time and different places। proximity of time and place is to be seen, बस chain complete होना चाहिए। there should not be any scope of fabrication, it must be automatic, natural, undesigned, unfabricated and uninterrupted। अगर ये सारी चीजें हैं on anything, be it the statement, be it something which is written form, be it the conduct, उन सबको हम मानेंगे as relevant as the part of same transaction, meaning thereby they all will be falling in doctrine of rest जैसे। तो देख लेते हैं what the section is saying। पहले हम section 6 देखेंगे, then we will be seeing what new term has been added in the new law। तो ऐसा fact, तो fact ऐसा होगा जो कि साक्तिन इशू नहीं है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू को प्रूफ करने के लिए तो वी आर रीडिंग द रेलेवेंट फैक्ट, तो दैट फैक्ट विल नॉट बी द फैक्ट इन इशू, लेकिन फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होगा। हाउ दैट विल बी कनेक्टेड, so that it is forming the part of same transaction। transaction means continuity of event। हो सकता है वो फैक्ट एक ही टाइम प्लेस पर हो or at different time and different places, but this fact must be natural, it must be spontaneous, it must be unfabricated, it must be undesigned, it must be uninterrupted, so that there is no concoction। concoction मतलब no story making का opportunity is there। then we classify that fact as the what, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जैसे। देखो पूरा सेक्शन सेम है, बस एक वर्ड ऐड ऑन कर दिया गया है। देख लेते हैं व्हाट इज दैट न्यू टर्म एडेड इन द न्यू लॉ। वो फैक्टिंग इशू तो नहीं होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर फैक्टिंग इशू कोई चीज हो गई तो रेलेवेंट फैक्ट तो होगी नहीं। लेकिन वो कनेक्टेड पहले किससे था, ओनली फैक्टिंग इशू। अब हमने क्या ऐड कर दिया, दिस न्यू टर्म और रेलेवेंट फैक्ट। इट मींस दैट फैक्ट either can be connected with the facting issue of that case, yeah, with some other relevant fact। How it is connected, so as to form the part of same transaction। again या तो एक टाइम और प्लेस पर हो या डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पर हो। तो देख लेते हैं व्हाट चेंज हैज बीन ब्रॉट इन द न्यू लॉ। ये रेलेवेंट फैक्ट लिख लिया आपने। देखो पहले क्या था, सच फैक्ट
was such which is connected with fact and issue so as to form the part of same transaction. Now, it could be even connected to some other relevant fact. उस केस के दूसरे relevant fact से भी अगर वो connected है, so that it is forming the part of same transaction, तो भी हम उसको बोलेंगे कि yes, it is relevant as doctrine of res geste. Got the difference? पहले केवल वो फैक्ट फैक्टिंग इशू से कनेक्टेड था, अब हो सकता है आपस में ही वो रेलेवेंट फैक्ट कनेक्टेड हो, देन ऑल्सो इट कुड बी डेजिग्नेटेड एज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे. इफ देयर इज सम डिफरेंस इन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ, तो हम जरूर पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि इन में यू हैव टू राइट दैट पॉइंट एंड मोर ओवर पीटी में तो देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पॉइंट. तो लेट अस सी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे में व्हाट डिफरेंस वी हैव. इन इंग्लिश लॉ, पहले आप सुनो फिर आई विल मेक यू टू राइट. इन इंग्लिश लॉ देयर डोमेन इज ब्रॉड. क्यों वहां ब्रॉड है? हम तो केवल एक चीज रखते हैं इन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, सच फैक्ट जो कि फॉर्म करा पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. बट इन इंग्लिश लॉ along with the part of same transaction, it could be effect, it could be cause, it could be occasion, it could be opportunity, it could be previous conduct, it could be subsequent conduct. यानी जो बाकी हमने आगे सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट बना के रखे हैं एविडेंस एक्ट एंड करस्पॉन्डिंग बीएसए में, उसको भी माना जाता है इन इंग्लिश लॉ एज दी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे. जबकि हमारे यहाँ क्या है, ओनली सच फैक्ट which form the part of same transaction that could be classified as डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे. इन इंग्लिश लॉ अगर कोई चीज कॉन्सिक्वेंस है, इफेक्ट है, जैसे इफ सपोज रोहित एंड बच्चे ने गौरव दे स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर, और बस एग्जांपल के लिए है, गौरव पे चश्मा टूट के गिर जाता है, इट इज द इफेक्ट. तो वहां पर दिस इफेक्ट इज आल्सो रेलेवेंट एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. हमारे यहाँ दैट इज रेलेवेंट एज सम अदर फैक्ट इन सम अदर सेक्शन. अंडरस्टूड द डिफरेंस? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.